Okay, question is in how many ways you can reach from A to B taking the shortest path. हाँ जी, Vaibhav has replied. Good one, Vaibhav. Okay. हाँ जी, सचेत. ओके, सचेत कैसे किया बेटा आपने? सर पहले हम ए टू सी जाएंगे जो वो है इसको M ले लेते हैं नाम, इसको N. हाँ जी. सर पहले हम ए टू एम जाएंगे ओके. और इस चीज और फिर एम से एन एक ही पाथ होगा और एन से बी जाएंगे। वेरी गुड. सो सचित इज सेइंग कि सर अगर हमें शॉर्टेस्ट पाथ लेना है देन ऑफ कोर्स वी विल हैव टू गो फ्रॉम M to N. M to N वाला पाथ जो है दैट वी हैव टू टेक. सो फॉर शॉर्टेस्ट रूट यू हैव टू गो फ्रॉम A to M and then N to B. A to M we have got two east is there, one north is there. So two east, one north and two east. This can be arranged in 3 factorial by 2 factorial ways, that is 3 ways. And then from N to B, N to B when you are going, you have got two north direction you have to take steps and two in each direction. So the total ways will be in this case is 4 factorial by 2 factorial 2 factorial which is 6. ठीक है, आगे क्या किया सचित आपने? सर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दो। सो आपने फिर आपका आंसर गलत आ रहा है ना? सो टोटल वेज वैभव हैज डन करेक्टली. सो टोटल वेज is nothing but 6 into 3 or 18 ways are there. ठीक है, so we have used the fact that for shortest route you have to take the diagonal path. This path is must to take for shortest route. Okay, now this is a variation in the question. You have to reach from A to B. आपको A to B जाना है बेटा. And you can go either in north direction, east direction or northeast direction. So in how many ways you can go from A to B? अगर हम नॉर्थ ईस्ट को भूल जाएं तो हमारे पास केस 1 कौन सा होगा बेटा? केस 1 is you have to take 4 steps, 3 steps in north direction and 4 steps in east direction. ये वाला पार्ट क्लियर है? If I am not taking any diagonal step, मैं नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेप ही नहीं ले रहा हूं. So total ways this can be done is 7 factorial upon 3 factorial and 4 factorial. Agreed on this? Yes, sir. Okay, what about if I am interested in taking one diagonal step? अगर मैंने बेटा सिर्फ एक diagonal step लिया है, so what's happening is with one diagonal step, I need not to take one east step and I need not to take one north step. तो मेरा एक north का और एक east का step जो है वो redundant हो जाएगा, not required if I'm taking one diagonal step. अगर मैंने सिर्फ एक diagonal step लिया है, ठीक है? So second case मेरा that will be is I have to take 2 north, 3 east and one diagonal step to reach from A to B. ठीक है? So that let's see here. I have to take 2 north, 1 and 1 2 north and sorry 2 north, 3 east and 1 diagonal. Okay, so this is 1 2 north and 1 2 3 east and 1 diagonal. So you permute them. If you are permuting it as, you can permute it as east, diagonal, east, north, north and east. So whichever way you prefer, you can permute. So all the permutation will involve one diagonal step. So all permutations are involving one diagonal steps. So this number of ways you can permute is total. How many elements are there now? 3. Total elements 6. 1 2 3 4 5 6. 6 elements are there, out of which 2 are of one kind, 3 are of another kind. और बताओ पॉसिबिलिटीज क्या होंगी?
Instead of one diagonal, I am taking two diagonals, है ना? जैसे ही मैं एक डायगोनल को इन्वॉल्व करता हूं, वो डायगोनल किसको खा जाता है? इट ईट अवे वन नॉर्थ एंड वन ईस्ट, है ना? तो एक नॉर्थ और एक ईस्ट हमारा रिडंडेंट हो जाएगा. So that becomes two diagonals, one north and two east. You take these steps to reach from A to B. And number of ways for this will be 5 elements, 2 are of one kind and 2 are of one kind. सर रिजल्ट सब में सेम आएगा? सेम मतलब सब में अलग अलग रिजल्ट है. देखो जैसे यहाँ पर हमने स्टेप लिया, अगर आप इसको परम्यूट कर रहे हैं, आई एम टेकिंग डी एन ई एंड डी ई, इसका मतलब है यू आर गोइंग वन डायगोनल फर्स्ट, देन नॉर्थ, then you are going east, then diagonal, then east. You are reaching from A to B. ठीक है? यहाँ पर there is no diagonal. ठीक है? There is no diagonal. यहाँ पर only one diagonal. Here you have taken two diagonal. सर हम एक और डायगोनल क्यों नहीं ले सकते? बेटा एक और diagonal जो होगा फिर then it will become a third case. Fourth case. Fourth case is where you have taken 3 diagonal and 1 each step to reach from A to B. So that is 4 factorial by 3 factorial. आप केसेस किस बेस पे बना रहे हैं? When you are not taking any diagonal step, यहाँ पर आपने you have not taken any diagonal step. Here you have taken only one diagonal, so remaining will be by north and east. Here you have taken 2 diagonals, remaining by north and east. Here you have taken 3 diagonals. सर तो हमारा आंसर ये सब लेंगे ना हम आंसर? हाँ जी, your answer will be you add all of these to get total number of solution. आपको इन सबको ऐड करना पड़ेगा बेटा. ठीक है? So calculate कर लेते हैं. This is coming 756, so this is 35. So this is 654, so that is 60. And this is 532, so that is 30. 15. And this is 4. So total number of steps are 90, 125, 129. Total number of ways you can reach from A to B. ओके. शॉर्टेस्ट पाथ अगर पूछो तो शॉर्टेस्ट पाथ में यू विल इन्वॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ डायगोनल्स, है ना? तो शॉर्टेस्ट पाथ में यू विल इन्वॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ डायगोनल्स. सो shortest way to reach from A to B, then the answer will be 4. ठीक है? Let's see what are these 4 ways. One is you go here, then here, you know. Another is you go here and like this you are going. ठीक है? So what's the another way? You are going from here, then like this and like this. One more. So you are going सर 2 डायगोनल्स ऊपर फिर this, ईस्ट फिर like this and like this. Shortest, that is 4 ways. Total, that is 129. Any other way we could have solved this? हाँ जी वैभव, और कैसे सॉल्व कर सकते हैं इससे? सारांश? सर ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं. नहीं, एक और वे. सारांश, ये आर्यन ने ज्वाइन नहीं किया बेटा? सर मैं कॉल कर लेता हूँ उसे. हाँ, एक बार कॉल कर दो, है ना? ओके. अदर इज मैनुअली, है ना, which we had learned yesterday. Few students were having lot of confusion, so I specially taken this. अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है, so in this place you can reach only in one way. In this place you can reach only in one way. This is one, this is one, है ना? इन पॉइंट्स पर there is no other way to reach but directly from the original point. ठीक है? If I am talking about this particular point, तो यहाँ पर आप कितने वेज में जा सकते हैं? 2. 3. 3 ways.
this, and this, you know. So this is your 3 ways is there. How about this point? 4 ways. 4, think on it again. 5 ways. हाँ जी, यहाँ पे Yes, कितने वेज में? 1 वे है ना। यहाँ पर आप 1 वे में आए, फिर यहाँ से 1 वे में इधर चले गए। यहाँ पर 1 वे में आए हैं आप और 1 वे में इधर चले गए। यहाँ पर आप 3 वेज में आ रहे हैं एंड thus you are reaching at this point with this route. आप इस रूट को इंक्लूड करते हुए आप इस अपनी डेस्टिनेशन पर 3 वेज में आ रहे हैं ना। सो टोटल इज 1, 1 and 3. So total becomes 5 ways. This is 5 ways. And this will be how much? So 8. this one, 7. this one, and this 5. So that is 7 ways. Right? Understood? yes, sir. So manually आप calculate करें, you will get your answer. ठीक है? Let's take one more. If I am interested here, how many ways? 3. 3, 4, 5 ways. है ना बेटा? ये तो 3 था यहाँ पर। फिर से देखो, समझ में आया आपको? Yes, sir. This is 5. Yes, sir. What about this one? 7. 7. क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? यहाँ से कितने वे में आ सकते हो? 9 5. ways. 5 ways. और यहाँ से कितने वे में आ सकते हैं हम? 1. 3. आप समझे? नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं ना। देखो, अगर मैं यहाँ से ऐसे गया, ठीक है, और बेसिकली आई एम रीचिंग दिस पॉइंट with this route, via this route, in how many ways? So you can either go from here like this, or you can go like this, or you can go from here like this, you know. So all 3 ways you are reaching first at this point, and then you are reaching your point here in 3 ways. तो वो सारे ways जो है add up हो जाएंगे. Okay. So this is 5 plus 5, sorry, 5 plus 3 plus 5. Total becomes 13 ways. This is 13 ways. Sir, हाँ जी. sir, he's joining in a minute. Okay. How about this? 25. 25. That's it. ठीक है. यहाँ पर ये 7 हो गए. This is 5 and this is 13. So 25 ways. Understood how to calculate manually? Yes, sir. ठीक है. अगर हमारे पास सिर्फ डायग्राम इतना ही होता तो from point A to B I can reach in 25 ways. कोई प्रॉब्लम नहीं है. डायग्राम बड़ा है तो मैनुअली कैलकुलेट करना is doesn't take much time. ठीक है. Systematic addition is what is required. Right? Yes, sir. Okay, very good. चलो, this question, it's a manual addition is there. ठीक है. You have to reach, chess board है but 5x5 का है. You have to go from A to B. ठीक है. King is there. It has to move from A to B. In how many ways it can go? King की movement जो है बेटा, it can be either horizontally 1 step, vertically 1, or diagonally 1. ठीक है. So in how many ways king can reach from A to B? King can go directly here like this, or it can go like this, like this, like this. ठीक है. Lot of ways are there for king to move. So in how many ways it can go from A to B? Or it can go is like this, but it has to reach it in 1, 2, 3, 4. 4 steps only it has to take. Okay? It can't keep on wandering around on the chessboard. So with 4 steps, in how many ways it can reach from A to B? Ready? Shortest number? Hanji? No, sir, nothing. Okay. In how many ways it can come at this point? 1. 1 ways. And this way, this 1. 1 way. है ना? Manually calculate कर रहे हैं. अगर इसको यहाँ पर इस point पर आने बेटा, in how many ways? 1. 1 way. In this point? 2. 2 ways. है ना? It can either come from here or from here. So 2 ways it can reach here. How about this box?
3. Three. 3. 3. Are you sure? 3. 4. 4. Are you sure? Because king has to take only 4 steps. So 4 steps means it cannot go down. अगर down जाएगा तो फिर उसके steps बढ़ जाएंगे बेटा, है ना? If you are making it like this, अगर आपने ऐसे किया कि it's going like this, down, then here and here. Now the steps are 1, 2, 3, 4, 5. 5 steps हो जाएंगे That's वो, your 2 ways. है ना? हाँ जी, हाँ जी. So king can either move. अगर आप देखेंगे तो king can either move in वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन और डायगोनल. तो ये ऊपर ग्रिड वाला जो क्वेश्चन था एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन है, बट आप मैन्युअली कैलकुलेट कर रहे हैं चीजें. ठीक है. सो इट कैन रीच एट दिस पॉइंट इन हाउ मेनी वेज? 2 वेज. सो आइदर फ्रॉम हियर और फ्रॉम हियर. दैट्स इट. राइट. चलो, हाउ बट दिस बॉक्स? इट विल नॉट लाइक टू रीच दिस बॉक्स, क्योंकि इसके बाद एक स्टेप में उसको बी तक पहुंचना है. इट कैन नॉट रीच बी इन वन स्टेप. ठीक है. So I am not interested in this box. I am interested in this box. How many ways? हाँ जी. 5 ways. 5 ways it can reach in this box. How about this one? 9. No, it cannot come down now. Sir, 3 ways. 3 ways. 3, are you sure? 5. 5, sure? Yes, sir. 5. It can reach here either like this, diagonally or horizontally. So how many ways? 4. 4. 4. And from here to here in 9 ways. 9. देखो, जो पाथ है, जो किंग का पाथ है, किंग हैज टू टेक ओनली 4 स्टेप्स. सो दोस 4 स्टेप्स शुड बी आइदर वेस्टवर्ड, नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड एंड डायगोनल. ठीक है. सो हर स्टेप में वो वर्टिकली जो है हैज टू जंप 1, 2, 3 एंड 4. सो सॉरी, हाँ जी, ये जो हॉरिजॉन्टल है, horizontal each time it has to move into the separate column. Horizontally if it's moving in the same column, अगर उसमें movement करी है king ने, then it won't reach from A to B in 4 steps. ठीक है. So king के पास starting में option C either here, then from here it has option either to go here, or this will be this or this or this and this. ठीक है. Then again the option is this. Okay, I hope things are clear now. This was the option, or this was the option, and then this was the option. Right. Okay, let's take one more. If I'll add one more like this. ठीक है ना? Now king has to reach from A to B in 1, 2, 3, 4, 5 in 5 steps. In how many ways it can reach? Ready? चलो जी, फटाफट बताओ. बॉक्स 1 में क्या आएगा? 1. 1. यहाँ पर here 1. 1. बॉक्स सी में 1. 1. डी में 2. 2 will be there, है ना? So in box D the king can reach in 2 ways. ठीक है. Either it will take the root of this root or it will take this root. So 2 ways it is able to reach. Next, downward box. 2. 2. 2, ठीक है. In how many ways it can reach in F? 4,
4. 4. G will be how much? 5. 5 ways, है ना. This 5 you can easily trace out, है ना. हम logically बढ़ रहे हैं, तो you can easily trace out this 5 ways. This is one way, है ना. And then comes your, this is second way. So like that you can trace out this 5 ways, right? G H, in how many ways is H? 3 ways. I box, tell me I. 12. 12 ways, है ना. Yes. All these will be adding up, so this is 12 ways. J will be how much? 9. 9. 9 ways. And king will reach finally destination in 21 ways. That will be the answer. Done, done, done. Yes, Yes, sir. sir. Chalo ji. Everyone is here. So first we'll use up the concept, है ना. हमने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चंस किए थे. तो यहाँ पर we have taken, we have got 10 plus 10 ones are there and 2 plus signs are there. Total 12 elements are there, which can be permuted in 12 factorial ways, out of which 10 elements are one kind and 2 were of another kind. This was number of solutions. किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? Okay. So when you are talking about natural numbers, so minimum one has to be assigned. So after we assigned the one, our equation became this, है ना. ये हमारी equation थी, ठीक है. Now x dash, y dash and z dash, these are your whole numbers. Whole number. So we have got 7 ones are there and 2 plus signs are there. So total 9 elements, out of which 7 are of one kind, 2 are of another kind. Now x plus y plus z is less than this. So we said that कि इनको हमें 10 टॉफीज देनी है, और हो सकता है हम 10 से कम भी दें. मैक्सिमम 10 टॉफीज हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है. सो जो रिमेनिंग टॉफीज हैं दैट आई एम गिविंग टू माई सेल्फ, एंड देन आई रोट द इक्वेशन अगेन, ठीक है. And we found the number of solutions are total 13 elements, that is 10 ones are there and 3 plus signs are there, out of which ones 10 element are of one kind, 3 element of another kind. डाउट है तो प्लीज आस्क, है ना, बिकॉज इसी के बेस पे अभी हम 1 आवर क्वेश्चंस लेंगे, है ना. दिस वन यू फर्स्ट असाइंड, आपने सबसे पहले क्या असाइन किया, सबको एक एक टॉफीज दे दी, ठीक है. एंड यू गॉट लेस देन इक्वल्स टू 7. x y z दे वर होल नंबर्स, ठीक है. तो यहाँ कंडीशन थी हमारे पास 10 टॉफीज हैं, सबको जो है मिनिमम 1 मिलनी चाहिए, मैक्सिमम टॉफीज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड आर 10. तो मिनिमम 1, तो आई गिव 1. 7 क्यों होगा? क्योंकि बेटा मैंने एक्स वाई जेड को एक एक टॉफी जो देनी थी वो दे दी. देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब है आई हैव टू गिव, मेरे पास 10 टॉफीज हैं जो मुझे 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है. मैं मैक्सिमम 10 टॉफीज आई एम गोइंग टू गिव देम, और आई मे गिव लेस देन 10 ऑल्सो, बट बिकॉज दिस आर नेचुरल नंबर्स, तो एक्स वाई जेड विल हैव मिनिमम 1 वैल्यू. That means they are minimum, they are going to get 1 टॉफीज each. सबको एक एक टॉफी कम से कम मिलनी जरूरी है, ओके सर. ठीक है. So this is me who is standing with 10 toffees, and these are x, y and z. So I have to give them toffees. So natural number means minimum 1 toffees to be given to each. तो मैंने झंझट ही खत्म किया, पहले सबसे पहले एक एक टॉफी दे ही दी कि भाई मिनिमम देनी है, तो लेट्स गिव इट टू देम. अब ये जो 7 टॉफीज हैं, दिस हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन एक्स वाई जेड. मुझे उन पसंद ही नहीं आ रहे हैं किसी का चेहरा, तो मैं किसी को भी नहीं दे रहा हूँ टॉफी. ऑल 7 देन आर गोइंग विद मी. सो बेसिकली आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग टॉफीज इन दीज 3 स्टूडेंट्स प्लस माई सेल्फ. हाउ मेनी टॉफीज आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग? टोटल 7. And my answer will be 7 ones and 3 plus signs are there. So 10 factorial by 7 factorial, 3 factorial. Yes, sir. ठीक है. Okay. Now same thing, instead of
integers, I am saying x, y, z are even numbers. ठीक है, अगर x, y, z even numbers हैं, so can I say x is equals to 2 times of some number, or x is equals to 2 times of x dash, y is 2 times of z dash, z is 2 times of z dash. क्या हम बोल सकते हैं? Yes, sir. अब यहाँ पर एक्स वाई डैश क्या हो जाएगा? एक्स डैश, वाई डैश एंड जेड डैश, दे विल बी व्हाट? दे विल बी Natural number. Full numbers. होल number. नंबर्स. ठीक है, so these values I am putting here. So this I am getting is 2x dash plus 2y dash plus 2z dash is equals to 10, or x dash plus y dash plus z dash is equals to 5. Sir, यहाँ why पर will जस्ट 1 मिनट है ना, यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन आएगा है ना, वन सॉल्यूशन आई एम गेटिंग इज 2 + 3 + 0. दिस इज वन सॉल्यूशन आई एम गेटिंग. इसको जब आप देखेंगे तो x कितना हो जाएगा बेटा? 2 2 ज़ा 4, y कितना हो जाएगा? 2 3 ज़ा 6, z कितना हो जाएगा? 2 0 ज़ा 0. ठीक है, इट विल सेटिस्फाई आवर कंडीशन. So any solution which is coming out here in x dash, y dash, z dash equals to 5, we are going to multiply each one with 2. That will make sure that we are getting a even number as a result. ठीक है, number of solutions for this. हाँ जी, anyone? इसके कितने solutions हैं? Sir, 7 factorial upon 5 factorial into 2 factorial. Very good. So this is our answer for the question. हाँ जी, सिद्धांत बोलो. sir समझ गए? Okay. Very good, very good. So Vaibhav had already answered this. Let's see here. Next one. Are you ready? So chat box, you have to answer it. Let's see who is answering it first. All are odd numbers. आज बेटा full class is on IIT questions है ना? There is no CBSE question. All IIT questions will be there. Mm-hmm. Okay. बेटा IIT में there will be 2 or 3 questions है ना, or let's say 10% of the questions where there is no big concepts involved, just the trick is involved. ठीक है, आप सब अभी जो लगे हुए आपने ध्यान नहीं दिया, x y z 3 numbers are there. अगर बेटा तीनों के तीनों odd हैं, odd, odd and odd, then sum of two numbers is, sum of two odd is Even. and even plus odd will be odd, and thus the sum can never be 10. सर मैंने लिखा था चैट में क्वेश्चन. But sir, how will sum of, हाँ जी, तो आपने मेरे क्वेश्चन पे क्वेश्चन रेज कर दिया. So you should say number of ways are 0. सर ये दूसरे ठीक है? मेथड से भी इसका यही आएगा सर. अगर हमने x को 2x डैश प्लस 1 लिया, फिर सर जब हम उधर करेंगे तो 7/2 आ जाएगा, तो वो गलत हो गया वहां से. गलत हो जाएगा. वेरी गुड. चलो, this everyone has understood. Can I give one more question on this? Are this such that at least okay, one of the number is even.
वेरी गुड वैभव. Okay. Let me call Abhiraj. हाँ जी अभिराज. Yes, sir. बेटा at least one of them is even, है ना? So can we say our answer is total cases minus क्या होगा बेटा? No one is even. No one is even. That means all of them are Odd. Which all can are odd. All are odd. ये हमेशा ध्यान रखना, wherever you see the word at least, ठीक है, you apply this concept, है ना? At least is equals to total minus neglected. Okay, sir. ठीक है, total cases बताओ अभिराज. 13 factorial by 10 factorial. 13, is it 13? वापस चेक करो. 12 factorial हाँ जी, 12 factorial by by 10 factorial. 10 factorial 2 factorial minus when all are odd. 0. 0. So your answer is 12 into 11 by 2, which is 66. ठीक है, इंटरेस्टिंग है, ट्रिकी है चीजें, बट एज यूल कीप ऑन सॉल्विंग इट यूल कम अक्रॉस कि कैसी ट्रिक्स अप्लाई हो रही हैं. ठीक है, इफ आई एम सेइंग 2 odd, okay, or let's say the question is at least one of the number. ठीक है, or actually this question you can say in how many ways 10 can be written as sum of 2 odd and 1 even number. हाँ जी, good one वैभव. So 10 can be written as sum of 2 odd and 1 even number. तो again you will say initially starting कैसे करेंगे, x plus y plus z is equals to 10. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास केसेस कौन से बन रहे हैं? हमारे पास केसेस हैं, पहला केस है when there are all even are there. all even के अलावा दूसरा केस कौन सा बनेगा? ऑल ऑड. all odd तो बन ही नहीं सकता, सॉल्यूशन मतलब 0 वो आ रहा जीरो है. हो जाएगा. Yes, sir. हाँ जी, और कौन सा केस बनेगा? 2 odd then. चलो हम देख लेते हैं ना. 1 odd and 2 even, और 2 odd and 1 even, and all 3 odd. तो हमने यहाँ पर जो चेक किया है दैट इज, हाँ जी बोलो. सर सेकंड वाला केस पॉसिबल ही नहीं है. हाँ जी, तो यहाँ पर ये 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा. ठीक है, सो हमारे पास अभी क्या आया? वी हैव 2 odd प्लस 1 इवन, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, दैट इज इक्वल्स टू टोटल माइनस ऑल इवन. हमने टोटल भी कैलकुलेट किया हुआ है. टोटल कितना था हमारा? 12 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. ऑल इवन हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, दैट वाज 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. दैट विल गिव मी 2 ऑड एंड 1 इवन. सर हम ऐसे कर सकते हैं x को अगर हम 2x डैश प्लस 1 करके. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा इश्यूज आ जाएंगे. 2x डैश प्लस फिर इसका ऑड आंसर लेना 15 पड़ेगा. है. हाँ जी, इसका आंसर 15 आ रहा है. ये आप सॉल्व करेंगे. सो दिस इज कमिंग एज 66 माइनस दिस इज 35. 5 फैक्टोरियल सर तो 7 ये 6 वो दूसरे 21. वाले मेथड से नहीं हो रहा. So this is 45 is the answer. सर ये दूसरा जो मेथड 2x देखो डैश प्लस 1 वाले से. नहीं हो रहा है.
अगर हम नहीं, इसको ले लें 2x डैश प्लस, ठीक है, y एंड z आर ऑड, सो y को हम ले रहे हैं 2y डैश प्लस 1 और z को हम ले रहे हैं 2z डैश प्लस 1, ठीक है। सो दिस इज कमिंग एज 2y डैश प्लस 1 प्लस 2z डैश प्लस 1 is equals to 10. So x dash plus y dash plus z dash is equals to 12. Sorry, is equals to 8. 8 and divided by 2 is 4. Everyone, you understood this? When I am saying one of the number is even, so I am taking x as 2x dash. This is even, this is odd and odd. Please, है ना, any doubt do ask. आप पूछेंगे नहीं तो I will not come to know. तो यहाँ पर solution कितने आ रहे हैं सारांश आपके? सर 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल है ना, तो आंसर सर कितना वो आया 6 ये? इंटू 5 बाई 2 15. हो गया तो 15। हाँ जी, तो फिर कहाँ गड़बड़ कहाँ हो रही है? एनीवन? आंसर तो 45 सर आ हम रहा है। इनको दोबारा अरेंज भी कर सकते हैं, तो इंटू हाँ 3 जी, फैक्टोरियल करेंगे और फिर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 ऑड है। इम्प्रेसिव। व्हाट वैभव इज सेइंग कि सर जरूरी थोड़ा ना x ही इवन हो। फिर आप एक केस यस बनाओ जहां सर, y इवन है, फिर एक केस जहां पर z इवन है, ठीक है। सो माय आंसर विल बी 15 इंटू 3, दैट इज 45, है ना। 3 केस बनेंगे। फर्स्ट इज x इवन y z ऑड, y इज इवन x z ऑड एंड z इज इवन x y ऑड। हाँ जी, एग्रीड एग्रीड। यस सर। बेटा बिल्कुल नया टॉपिक, नया चैप्टर है ना। यू हैव not done it before in any of the class, है ना। So please, I am posting the videos, just go through the videos again, try to solve the questions by yourself. Okay, so total how many 4-digit numbers are there with sum of digits as 5? Total how many 4-digit numbers are there with sum of digits as 5? Now this is actual question which comes in IIT, है ना। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट पुराना ही यूज होगा, बट उसको कैसे यूज करना है वो थोड़ा सा ट्रिक है, ठीक है। सो यू विल अज्यूम दिस 4-digit नंबर इज देयर, सो यू विल अज्यूम लेट द नंबर इज A B C D, है ना, where A is the 1000-digit, B is 100th, 10th and D is unit digit. Now given is sum of digits is 5, so equation क्या बनेगी बेटा? A plus B plus C plus D is 5, ठीक है। सो हमारा आंसर कितना होगा इसमें? आवर आंसर विल बी 8 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दिस आंसर इज रॉन्ग, है ना। व्हाई दिस आंसर इज रॉन्ग? सर बिकॉज ए पे 0 ही नहीं होएगा सर, अब बाकी वेरी गुड। सब अगर A 0 हो गया देन दैट्स नॉट अ 4-digit नंबर। तो हमारा यहाँ पर जो सॉल्यूशन इनवैलिड है दैट इज 0 3 1 1, दिस इज एन इनवैलिड सॉल्यूशन इज देयर। सो हाउ टू सॉल्व दिस? कैसे सॉल्व करें बेटा? ए आपको चीख चीख कर क्या कह रहा है कि इसको कम से कम कितनी टॉफी चाहिए? 1। 1 टॉफी चाहिए ना। तो यहाँ पर हमारे पास है ए जो है वो नेचुरल नंबर है एंड बी सी डी आर होल नंबर। तो अगर ए को 1 टॉफी चाहिए तो क्या करेंगे हम शुरू में? उसको 1 टॉफी दे देते हैं, And then है it ना। will be whole number. So a dash plus b plus c plus d, this is 4 and your answer will be 7 factorial by 4 factorial 3 factorial. Just see the solution, है ना। Let me know if any doubt is there. So जब हम combination करेंगे we'll see this thing is represented by 7c4 और 7c3. सर हाँ जी, सर 0 वाले केस से एक बार वापस समझा दो।
ये क्वेश्चन वापस समझा दूं, जीरो वाला केस कौन सा बोल रहे Yes, हैं? sir. ओके ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आपको ये इक्वेशन समझ में आई है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना, दीज आर द डिजिट्स। ये हमारी 4 डिजिट है, 4 डिजिट नंबर की, इनका सम 5 बोला था तो हमने 5 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इफ यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड एज 2 0 1 2, so 2012 is it our required number? Yes, because it has got 4 digit and sum of digit is 5। ठीक है, बट यहाँ पर कुछ इनवैलिड केस भी आ रहे हैं। अगर मैंने लिया 0401, so this is saying 401 is also the number which I am getting, but ये तो इनवैलिड हो गया क्योंकि 0401 this is a 3 digit number, this is not 4 digit number I will call। तो मुझे वो नंबर्स जो आई हैव टू अवॉइड दिस। और बेसिकली मेरे पास रिस्ट्रिक्शन क्या है कि फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी जीरो। अगर फर्स्ट जीरो नहीं हो सकती है तो आई विल असाइन ए को मैं 1 असाइन कर रहा हूँ। सो मेरे पास जो सम ऑफ डिजिट नाउ विच आर लेफ्ट इज 4। ए के पास तो 1 है ही है। यहाँ पर मान लो अगर कोई नंबर आया हमारे पास, कोई सॉल्यूशन आया 1 2 0 1, तो बेसिकली दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए को मैंने 1 पहले भी दिया हुआ था और 1 अभी भी दिया है, तो दिस नंबर इज बिकमिंग 2201, 4 digits and sum of digit is 5। अब यहाँ पर if I am giving a number 00, let's say 40, now 1 was already given to A, so the number forming is 1040। again it's a 4 digit number with sum of digit 5। ठीक है, so thus the equation is this, जो कंडीशन थी A को मिनिमम 1 होना चाहिए, that I have assigned it and then formed the equation again। Understood? Yes, sir. चलो जी, read the question, form the equation on chat box। How many natural numbers have at most 6 digits and sum of digit is 5? So tell me on this, is 302 valid? Is 302 a valid number? Yes, sir. Valid ना, at most 6 digit, 6 से कम हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, so how about 111110? हाँ जी, valid or not? Valid. Yes. Valid। How about number 4? Valid? No. No, है ना, sum of digit 5 होनी चाहिए। How about 5? Valid. 5 is valid। हाँ जी, वैभव, करेक्ट आंसर। So basically 6 digits if I'll take A plus B plus C plus D plus E plus F, this is equals to 5। हाँ जी वैभव, आपने छोटी सी मिस्टेक किया था। सिद्धांत ऑल्सो सेम मिस्टेक। ठीक है, नाउ there is no more condition for A to be 0, that's it। This is same as previous question, but there is no more condition for A to have minimum 1 value। A can be 0, so whenever A, B and C these are becoming 0, you are getting 5 digit, 4 digit, 3 digit, 2 digit numbers। ठीक है, so you will not put any requirement for A to have minimum value of 1। your answer will be what? You have got 5 ones are there and 5 plus sign, so answer is 10 factorial by 5 factorial 5 factorial। चेक करें, पहले अगर हम A को 0 डाल रहे थे तो हमारे पास इश्यू क्या आ रहा था कि 4 डिजिट की जगह वो 3 डिजिट नंबर बन रहा था, है ना। बट यहाँ पर ये क्वेश्चन तो बोल ही रहा है कि बनने दो 4 digit 3 digit number बनने दो, that means it is shouting and saying that A can be 0, that's it, and this becomes our answer। Sir, 10 factorial by 5 factorial into 5 factorial कैसे? अरे इक्वेशन के सॉल्यूशंस। ठीक है, सो दिस इक्वेशन इज देयर बेटा। इस इक्वेशन में कितने वंस हैं हमारे पास? 5। और कितने प्लस आएंगे?
5 ओके सर। है ना। आप अरेंज जो है वो लेटर्स को थोड़ा ना कर रहे हैं, आप तो प्लस साइन को अरेंज कर रहे हैं। 5 plus and 5 ones number of ways you can arrange is this. ठीक है, I like that है ना सिद्धांत, keep on asking है ना, sometimes we tend to forget but once you will do it in 3-4 classes then things will become by heart कि क्या लॉजिक लग रहा है। See it anyone, any doubt? Doesn't matter बेटा, बहुत बेसिक भी है तो भी आप प्लीज आस्क इट है ना, स्टार्टिंग के क्लासेस में इट इज मस्ट। So this class on PNC will go for 2 weeks more. तो अभी बेस क्लियर नहीं करेंगे तो 2 weeks then problem will start arising. ठीक है, I told you there are 3 big chapters are there है ना, PNC, then is straight line and then is trigonometry. Okay. How many natural numbers have at most 5 digit and sum of digits also at most 5? ठीक है, so is 31 a valid number? नो। No, are you sure? Valid. Sir, it's valid. वैलिड। 5 से कम डिजिट होनी चाहिए, यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिजिट है। सम जो है वो 5 से कम होना चाहिए, यहाँ पर सम 4 है ना, इट्स वैलिड। तो सो लेस इफ आई, देन इक्वल टू हो जाएगा। हाँ जी, सो हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर होना चाहिए? सो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, दीज आर माई 5 वेरिएबल्स आर देयर है ना, जो 5 डिजिट Yes, नंबर sir. बना रहे हैं, और इनका सम जो है दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 5। चैट बॉक्स में आंसर देंगे। सो वैभव इज रॉन्ग। सो वैभव बेटा ध्यान रखो है ना, लाइफ में स्पेशली आईआईटी में आप पहला आंसर आपने गलत दे दिया, दूसरा सही दे रहे हैं, इट हैज एब्सोल्युटली नो वैल्यू, क्योंकि वहां पर जो है यू हैव टू राइदर टिक एमसीक्यू और राइट इंटीग्रल आंसर, और पहला आंसर गलत आपने अगर भर भी दिया तो दे विल नॉट से, मतलब दे विल नॉट गिव एनी मार्क्स टू यू। सो डोंट बी इन हरी, just review it, check it, be sure that it's a correct answer. Sachit, it's wrong. Chalo, let me change the question here. Please, everyone, pay attention. So you have 4 plus signs are there and 5 ones are there, but inequality है, तो यहाँ पर जो remaining chocolates है that I will give it to myself. So हम यहाँ पर plus f और करेंगे to make equality equality of 5. So now you are saying there are 5 ones and 5 plus signs are there. ठीक है, so this is a plus b plus c plus d plus e plus f is equals to 5. So you are saying sir number of ways is equals to 10 factorial by 5 factorial 5 factorial, but this is a wrong answer. That's the question now, why this is a wrong answer? क्योंकि सर वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और वो होल नंबर भी हो सकता, तो -1 कर देंगे। इम्प्रेसिव। वैभवी सिंह सर यहाँ पर एक केस हमने कौन सा बनाया, 0 0 0 0 0, और सारी की सारी चॉकलेट्स मैंने अपने पास रख ली, तो ये जो नंबर बना ये नंबर कौन सा बना, ये नंबर तो 0 बन गया। बट इज 0 अ वैलिड नंबर? वैलिड होता अगर होल नंबर की बात होती ना, नेचुरल नंबर्स Yes. इज टॉक्ड अबाउट। सो आंसर इज -1। दिस इज नाउ करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लें प्लीज है ना, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस, नोट इट डाउन। डन। ओके
चलो जी, how many 4-digit numbers are there with sum of digit as 15? we'll ask Rihanna, इक्वेशन बताओ क्या बनेगी बेटा? 4-digit numbers हैं and taking them as A B C D. इक्वेशन बताओ बेटा. हाँ जी तीशा, इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? तीशा परिचय. Sir, A plus B plus C plus D equals 14. is equals to 14. Why 14? Sum of digit is 15. 15. और 4-digit नंबर है तो A equals 0 नहीं हो सकता, तो 1 लेंगे उसे. Very good. So very good. A dash plus B plus C plus D is 14. ठीक है. तो इसका solution जो है students have started sending. They are saying sir answer is 17 factorial by 14 factorial 3 factorial. Now the big question is this answer is wrong. Why? सर बिकॉज सर अगर सिर्फ डी ले, जैसे अगर BC11 हो गया तो सर वो डी अकेला ही 2-digit नंबर बन जाएगा. वेरी गुड, इम्प्रेसिव. यहाँ पर ये जो हमने 4-digit नंबर की बात की थी, तो इनके लिमिटेशंस हैं. लिमिटेशंस इज दिस कैन बी बिटवीन 1 to 9, दिस कैन बी बिटवीन 0 to 9. ठीक है, दिस कैन नॉट बी मोर देन 9. और यहाँ पर हमारे पास एक केस कौन सा आ रहा है? दैट केस विल बी इफ आई एम टेकिंग दिस एज 0 plus 10 plus 2 plus 1 और 2. ठीक है, तो ये तो इनवैलिड बन गया हमारा, isn't it? हमारी जो लिमिटेशंस है उसको ये एक्सीड कर गया है. तो यहाँ पर हमें कुछ केसेस माइनस करने पड़ेंगे, है ना. कुछ केसेस कौन से माइनस करने हैं? ठीक है, पहला तो वो केस माइनस कर देते हैं जहां B जो है वो वेयर B इज आइदर 10 और मोर देन 10. फॉलोइंग दिस, which one we are subtracting where B is 10 or more than 10. यस सर. ठीक है, so cases to subtract. Number 1, B is more than equals to 10. तो इसका क्या मतलब है? हम वो केस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जहां पर B को जो है 10 या 10 से ज्यादा चॉकलेट मिल गई हैं, तो पहले उसको 10 चॉकलेट दे ही दो. तो हमारे पास केस आ गया A डैश प्लस B डैश प्लस C प्लस D. दिस इज इक्वल्स टू 4. आई हैव गिवन 10 चॉकलेट्स. मेरे को जो 10 B को अगर मैंने 10 चॉकलेट्स ऑलरेडी दे दी, तो यहाँ पर जितने भी सॉल्यूशन आएंगे उन सब में B के पास 10 या 10 से ज्यादा चॉकलेट होंगी. अंडरस्टूड दिस? यस. भाई मुझे वो केस माइनस करने हैं जहां पर B है, B की वैल्यू 10 या 10 से ज्यादा है. सो मैं ऑलरेडी B को 10 दे रहा हूं, उसके बाद देन आई एम फाइंडिंग हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर. सो ये सॉल्यूशन कितने आ गए? दिस सॉल्यूशन इज 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. ठीक है, हाउ अबाउट व्हेन C इज मोर देन इक्वल्स टू 10? आंसर विल बी सेम, सो 3 है ना. केसेस इन टोटल. A डैश B प्लस C डैश प्लस D इज 4 और D is more than equals to 10. Answer will be same. ठीक है, so overall my answer will be, जो subtract करने हैं cases, that will be 3 times of B का case, C का case and D का case more than equals to 10. और कौन सा केस माइनस करना है हमें? Where A is more than equals to 10, है ना, ये भी तो माइनस करना था. और A dash is more than equals to 9, क्योंकि A को 1 हमने दे दिया, तो A dash अगर 9 भी हो गया तो भी इनवैलिड हो गया हमारे लिए. हाँ जी हाँ जी. यस सर. So in this, whenever A dash is 9 or more than 9, ठीक है, it becomes an invalid case. So I am replacing now. मैं A, let A double dash is A dash plus 9. तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? A double dash
plus b plus c plus d is equals to 5. So जो हम subtract करेंगे that is 8 factorial by 5 factorial 3 factorial. ठीक है, and my answer will be 17 fact 1 minute. Okay, so my answer is 17 factorial by 4 factorial 3 factorial minus 3 times of 7 factorial 4 factorial 3 factorial minus 8 factorial 5 factorial 3 factorial. ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी था, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, सो जस्ट सी टू इट. सर केसेस टू सब्ट्रैक्ट में सर जो पहला वाला वो समझ नहीं आया. ओके, यहाँ पे हम केसेस कौन से सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा? व्हेन आइदर बी सी और डी इज मोर देन इक्वल्स टू 10, और दूसरा कौन सा सब्ट्रैक्ट करेंगे? व्हेन ए डैश, ठीक है, ए को हमने 1 दे दिया ऑलरेडी, तो ए डैश को अगर 9 दे दोगे तो आप ए डैश जो वो 10 बन जाएगा, अगर ए 10 बन गया तो इनवैलिड हो जाएगा, और व्हेन ए डैश इज मोर देन इक्वल्स टू 9, ये दो केसेस आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं. सर ठीक है, सो आप बेसिकली आपने 4 स्टूडेंट्स को यू हैव गिवन हाउ मेनी चॉकलेट्स? 14 चॉकलेट्स यू हैव गिवन. ठीक है, तो कितने वेज में आपने 14 चॉकलेट्स दी? 17 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, सॉरी 3 फैक्टोरियल एंड 14 फैक्टोरियल, है ना, इतने वेज में आपने चॉकलेट्स दी. बट नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट जहां पर बी को जो है 10 या 10 से ज्यादा चॉकलेट मिली हैं, वो केसेस आपको माइनस करने हैं. तो बेसिकली आई एम सेइंग कौन से केस आपको माइनस करने हैं? जहां पर बी डिमांड कर रहा है मुझे 10 चॉकलेट चाहिए कम से कम, तो आप बी को कम से कम 10 चॉकलेट कितने वे में दे के अरेंज कर सकते हैं? तो आप पहले क्या करेंगे? आप कहेंगे बी ठीक है भाई, तू 10 चॉकलेट ले ले अपने पास. अब बी को 10 चॉकलेट दे दिए मैंने, तो अब मैं वापस चॉकलेट्स अरेंज कर रहा हूं. अब कितनी चॉकलेट्स अरेंज करनी है मुझे? 10 चॉकलेट्स. अब मैं जैसे मर्जी अरेंज करूं, बी को तो 10 मिल गई है ना चॉकलेट्स. ठीक है, तो यहां पर अब जो भी सॉल्यूशन आएगा, मेरे पास सॉल्यूशन आया लेट्स से 205 सॉरी 2011, सो बी को कितनी मिली है चॉकलेट्स? बी को, सो माय आंसर विल बी 212 सॉरी 210 11, दैट विल बिकम माय आंसर व्हिच इज इनवैलिड, है ना, जो हमें सब्ट्रैक्ट करने थे. यस सर. सो यहाँ पर जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे, उन हर सॉल्यूशन में बी वैल्यू इज एटलीस्ट 10, क्योंकि वो 10 हमने बिल्कुल बिगनिंग में ही उसको दे दिए हैं. ठीक है, सेम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी व्हेन सी इज मोर देन 10 और डी इज मोर देन 10, तो इसलिए हम 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, सो दैट विल बी माय 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. ठीक है, और उसके बाद जो है हम अब लिमिटेशन सेकंड केस में लगा रहे हैं व्हेन a डैश इज 9 और मोर देन 9. चेक करें इफ एनी अदर डाउट. सर हाँ जी, सर हम वहाँ पर सीधा ए को 10 लेके भी तो कर सकते थे सर, ए डैश डैश लेने के अलावा. हाँ हम सीधा a को 10 लेकर भी कर सकते थे, बट फिर बात तो ये आपको a को सीधा 10 लेकर ये वाले केस में सॉल्व करना पड़ता, यस सर. है ना, आंसर सेम आता. हाँ जी, अंडरस्टूड एवरीवन? Okay, Yes, sir. so there is one more question is there, so this question I'll take on later on, है ना, बहुत heavy dose नहीं होना चाहिए. Okay, read the question and think of solution how it will be formed.
डोंट वरी बेटा, जो कॉन्सेप्ट्स आपने फर्स्ट क्लास में किए थे, आई होप वो सेकंड और थर्ड तक आते आते ना दैट यू हैव बिकम लिटिल कंफर्टेबल इन दैट, है ना. सेम वे ये जो कॉन्सेप्ट्स आप अभी सीख रहे हैं, सो नेक्स्ट क्लास अगेन आई विल टेक 1 or 2 क्वेश्चन ऑन सेम, है ना. बाय द एंड ऑफ सेशंस यू विल बी कंफर्टेबल विद ऑल दोस क्वेश्चंस. तो बेटा एक बैग है, उसमें अनलिमिटेड पेन है, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट एंड रेड कलर के. You can see, you can open and see the bag. I've asked you to select few pens out of it. So in how many ways you can make those few selections? Either you can take all blue, or you can take 4 blue and 1 black. Okay? So in how many ways you can make those selections? Pens are identical as such, only the colors are different. So 2 blue pen, they are identical to each other. I've got first answer from Aryan Verma. Is it correct? Wrong, not correct. ठीक है, आर्यन वर्मा ने आंसर दिया है सर, आंसर इज 4:5. ठीक है बेटा, 4:5. ही सेइंग सर पहला पेन मेरे पास ऑप्शन है, मैं इनमें से कुछ भी उठा सकता हूँ. ठीक है, सो आर्यन वर्मा ने पहला पेन लिया, दैट इज लेट्स से ब्लू. ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट उसमें देन अगेन व्हेन ही स्पीकिंग सेकंड पेन द ऑप्शन इज वाइट 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 वाइट. तो उसने ये पहले ये पेन उठा लिए 5. ठीक है, और इसी में अगर उसने फर्स्ट पेन जो है वो व्हाइट लिया, सेकंड पेन ही टुक ब्लू एंड देन अगेन व्हाइट व्हाइट व्हाइट. तो आर्यन बेटा ये दोनों केसेस सेम है या डिफरेंट है बेटा? डिफरेंट है. डिफरेंट कैसे हैं? यहाँ पर आपने Yes. मैंने पूछा कितने पेन लिए, आप कह रहे हो सर 4 व्हाइट और 1 ब्लू, सेम ही है ना. यहाँ पर भी आप बोलेंगे सर 4 व्हाइट एंड 1 ब्लू. ठीक है, सेम. बट आपके हाँ 4:5 में यू हैव काउंटेड देम डिफरेंटली. So in the end, when you are declaring what pen you have taken, ठीक है, तो आप वो कितने डिफरेंट वेज में डिक्लेयर कर सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन. सो जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप कैसे डिक्लेयर करेंगे आर्यन? आप कैसे डिक्लेयर करेंगे? सर आई हैव टेकन A numbers of blue pen, B numbers of black pen, C numbers of white pen and D numbers of red pen. है ना, मैंने 1 ब्लू लिया है, 2 ब्लैक लिए हैं, 2 व्हाइट लिए हैं और 0 रेड लिए हैं. हाँ जी आर्यन, इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? इज इक्वल टू 5 हो जाएगा. इज इक्वल्स टू 5, दैट्स इट. ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, बट इक्वेशन अप्लाई कैसे होगी, दैट नीड सम प्रैक्टिस. ठीक है, फॉर दैट ओनली आई हैव टेकन लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, सो विल सी टू इट. So our answer will be 8 factorial upon 5 factorial 3 factorial. That's my answer. Very good, very good. Anyone any doubt in this? Nope, nope. Okay. Sir, Z is integer. हाँ जी, ठीक है. अब मुझे बता दो A जो है वो किस फॉर्म में होगा, A में कौन सा फैक्टर्स होंगे? 7. सिर्फ 7 ही होगा, 7 के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता. सो A will be in form of 7 raised to power x something some value, है ना. सचित ये x की लिमिटेशन क्या है यहाँ पर? Sir, x cannot be more than 9. X cannot be more than 9, very good, and can be 0, है ना. So basically x is a whole number but cannot be more than 9. ठीक है, B को हम क्या लेंगे, 7 raised to power y, C is nothing but 7 raised to power z. चलो अब सॉल्व करेंगे.
टेल मी योर आंसर। हाँ जी, वैभव रॉन्ग, सचित रॉन्ग। सचित मिस्टेक, आपने तो काफी बड़ी मिस्टेक कर दी। टीशा, हाउ मेनी प्लस साइन? चेक अगेन, हाउ मेनी प्लस साइंस आर देयर? हाँ जी, सारांश रॉन्ग, सिद्धांत रॉन्ग, है ना। दिस इज व्हाट आईआईटी इज। ठीक है, फॉर्मूला सभी ने सेम लगाया है बट आंसर सभी के गलत हैं। ठीक है, आंसर हमारा क्या आ रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9। तो आप लोग कह रहे हैं कि सर यहाँ पर 9 वंस हैं और 2 प्लस साइंस हैं, है ना। सो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 11 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सॉल्यूशन में कैसा होगा? जैसे यहाँ पर हमने इसको ले लिया 3, इसको ले लिया 6, इसको ले लिया 0, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है? a is 7 raised to power 3, b is 7 raised to power 6 and c is 7 raised to power 0. Of course that's one of the valid solution, but this answer is wrong. हे भगवान, इतनी मेहनत की, 1 घंटा क्लास की, लेकिन आंसर ये गलत कैसे हो गया फिर? नेगेटिव भी है इसलिए। हाँ जी, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर z है ना, इतना बड़ा सा z लिखा हुआ है। ABC आर इंटीजर, नॉट नेचुरल नंबर। अगर इंटीजर है 10, दे कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पर एक केस और कौन सा बनता है हमारा जो हमने मिस किया कि -7 रेज़ टू पावर 3, -7 रेज़ टू पावर 6 एंड 1। ये भी तो एक वैलिड केस था। मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर 7 रेज़ टू पावर 9 होगा। ठीक है, सो हमारे जो वैलिड केस होंगे ए बी सी के सेट में, वो तीनों प्लस हो या फिर 2 माइनस ये वाले या फिर ये वाले। तो हमारे पास सॉल्यूशन जो है, किसी एक सेट के ऊपर 4 सॉल्यूशन निकल रहे हैं हमारे पास। ठीक है, सो माय आंसर विल बी 4 into 11 factorial upon 9 factorial 2 factorial. That is my answer. नोट कर लें ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लें। नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर है ना, इसको प्रॉपर्ली रीड करना है, अवॉइड नहीं करना है। इफ यू पर्सनली आस्क मी, आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं जो बाउंसर्स होते हैं, 7-8 क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रिकी होंगे ना, सम ट्रिक, स्मॉल ट्रिक वेयर यू आर डूइंग अ कॉमन मिस्टेक, and 10 questions are CBSE plus level only. ठीक है, I hope you found this question not difficult but just a tricky question. हाँ जी, आगे करें। यस सर। ओके, in how many ways 7 raised to power 9 can be written down as product of 3 natural numbers? सर ये तो अभी किया था। ये तो अभी किया था, है ना। फिर पंगे, फिर प्रॉब्लम क्या आ गई? सर इसमें वो करेंगे हम माइनस और जीरो वाले सब्ट्रैक्ट। कौन से? मतलब सर माइनस वाले तो लेंगे ही नहीं और जीरो वाले सब्ट्रैक्ट तो करेंगे। जीरो वाले तो पहले भी नहीं लिए थे, इनटू 0 कर देते तो आंसर 0 हो जाता। 0 तो पहले भी नहीं आया था। anyone? So what Siddhant is saying कि सर 7 raised to power x plus y plus z, जैसे ऊपर किया था वैसे ही प्रोसीड करेंगे, and my answer is 11 factorial by 9 factorial 2 factorial. ठीक है सिद्धांत, यही बोल रहे हो, यही आंसर है आपका? यस सर। बट दिस इज रॉन्ग। सर मैं पावर्स के लिए बोल रहा था जीरो।
तो जीरो पावर को क्यों अवॉइड करोगे भाई? पावर जीरो होने दो, नंबर जो है वो 1 हो जाएगा एंड इट इज स्टिल नेचुरल नंबर. यस सर. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. एनीवन, व्हाई दिस आंसर इज रॉन्ग? तुम ये तो पढ़ ही नहीं रहे सही आंसर क्या, यही पढ़ रहे हैं कि गलत क्यों है ये आंसर. देख लेते हैं, है ना. अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यहाँ पर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन द फर्स्ट क्वेश्चन, देन 7 raised to power 3 into 7 raised to power 6 into 7 raised to power 0 was one of the solution, and 7 raised to power 3 into 7 raised to power 0 into 7 raised to power 6 was one more solution. Then 7 raised to power 0 into 7 raised to power 6 into 7 raised to power 3 was one more solution, because every time a b c की values different आ रही थी. Here if you read the question, it talks about in how many ways you can write it down as product of three natural numbers, है ना. So मैंने पूछा कि आप 6 को जो है let's say 12 को as product of three natural numbers आप कैसे लिख सकते हैं. So you are saying sir 1 into 3 into 4, and one more is you multiply 4 and 3 and 1, and other is you multiply 3 1 and 4, है ना. Isn't it weird? आप in the end वो तीन नंबर ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं. You're following this part? Yes, sir. In first question, 12 as 3 into 4 into 1 or 4 into 3 into 1 or 1 into 3 into 4, ये सारे different cases हैं. These all are different cases in the first case. In the second, 7 raised to power 9 as product of three natural numbers just I am interested in. So 12 is 1 into 3 into 4 will be, or 3 into 4 into 1, or 1 into 3 4 into 3, so on. This will be counted as one case only. ये सिर्फ एक ही केस काउंट होंगे. हाँ जी, agreed on this? सर तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे. Is it 3? Sir, 3 factorial. 3 factorial. हर केस जो है वो 3 factorial टाइम्स रिपीट हो रहा है ना. देखो देखो देखो. So when I am talking about 7 raised to power 2 into 7 raised to power 3 into 7 raised to power 4, ठीक है. This was counted 6 times. वो यहाँ पर जो है 6 times काउंट हो गया है. इसमें जो है वो 6 times काउंट हो गया है. ठीक है. 6 केसेस कौन से हैं जब आप इनको परम्यूट कर रहे हैं ना. 7 2 7 4 7 3 7 3 7 2 7 4 7 3 7 4 7 2 7 4 7 3 7 2 7 4 7 2 7 3. ये 6 टाइम्स काउंट हो रहा है एक एक केस, जो कि यहाँ पर हम 6 टाइम्स काउंट नहीं करेंगे. ठीक है. सो ये हमारा आंसर कितना आ रहा था. दिस इज कमिंग एज 11 into 10 by 2, that is 55. ठीक है. So you are supposed to divide 55 by 6, but 55 तो 6 से डिवाइड ही नहीं होता. तो कहाँ पे गड़बड़ की हमने. सर वो जैसे कुछ केस होंगे जिसमें 3 3 3 वो 3 बार नहीं होंगे, वो तो हाँ सिर्फ जी. एक बार. वैभव ये सेइंग कि सर सारे के सारे केसेस जो हैं वो 6 बार काउंट नहीं हुए हैं. कुछ केसेस जैसे कि 7 raised to power 3 into 7 raised to power 3 into 7 raised to power 3, ये वाला केस जो है वो सिर्फ एक ही बार काउंट हुआ था और हम डिवाइड 6 से कर रहे हैं. ठीक है. सो यू विल एड 5 into it कि भाई ये एक बार काउंट हुआ था तो मैंने 5 और ऐड कर दिए हैं. आई विल टेक इट एज इफ नाउ इट्स काउंटेड 6 टाइम्स. कुछ केस जैसे 7 raised to power 0 into 7 raised to power 0 into 7 raised to power 9, अगर आप इनको परम्यूट करेंगे तो ये 707970 797070, ये केसेस कितनी बार काउंट हो रहे हैं. ये 3 टाइम्स काउंट हो रहे हैं. और जबकि मैं डिवाइड किससे कर रहा हूं. मैं डिवाइड तो 6 से कर रहा हूं. ठीक है. कौन से केसेस हैं जो सिर्फ 3 बार काउंट हुए थे. दैट इज 707079 717177 7272 and 75. इन 3 केसेस में
जो परम्यूटेशन था वो 3 बार हो रहा था, तो मुझे उन 3 में से सिर्फ एक ही लेना था, बट आई अज्यूम्ड एज इफ द परम्यूटेशन वाज 6 टाइम्स, और मैं 6 में से एक लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ये जो 3 टाइम्स सिर्फ थे परम्यूट, सो आई विल एड 3 into 5 कि now in this full scenario everything is taken now 6 times and this becomes my answer. ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा this is toughest question in this full PNC. ठीक है, so don't worry, I will take this question again also in some other format to clear the concept. ठीक है, जिनको अभी समझ में आया है ना, प्लीज राइट डाउन द सॉल्यूशन एंड विल डिस्कस दिस व्हेन आई एम टेकिंग केसेस ऑफ बॉक्सेस एंड पेन, तो उसमें आई विल डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट अगेन। सर हमने पहली बारी में 5 क्यों ऐड करा? हाँ जी, चल मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, है ना। देखो, एक केस है व्हेन आई एम सेइंग x plus y plus z is 6, ठीक है, और दूसरा केस है व्हेन आई एम सेइंग सम ऑफ 3 numbers equals to 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा, दैट आंसर इज व्हाट, 8 factorial by 6 factorial 2 factorial, so that is 28। ठीक है, this 28 is there। अब यहाँ पर एक जो आंसर था हमारे पास, दैट इज 1 2 3। ठीक है, अब ये जो 28 है, 1 मिनट, ये आंसर यहाँ पर 28 नहीं होगा, है ना। On this side answer is not 28. Why? Because 1 2 3, this is counted 6 times, ये हमने 6 times काउंट कर लिया था, है ना, तो यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए by 6। ठीक है, but are each set being counted 6 times? क्या हर सेट को 6 times काउंट किया गया था? ठीक है, अगर मैं बात करूं 0 2 4, क्या इसे 6 times काउंट किया गया है? Yes, है ना, दिस वाज काउंटेड 6 टाइम्स, 0 4 2, ये सारे हमने वैलिड सॉल्यूशंस लिए हैं, 2 0 4 2 4 0 4 2 0 4 0 2। ठीक है, तो बाई 6 इज वैलिड फॉर दिस आल्सो। ठीक है, बट कुछ सॉल्यूशंस है ना, और लेट्स से, ठीक है, बेस्ट वे टू मेक यू अंडरस्टैंड इज व्हेन आई राइट ऑल द सॉल्यूशंस। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है बेटा, आई विल एक्सटेंड द क्लास बाय 15 मिनट्स। चलो जी, ये 28 सॉल्यूशंस लिख रहे हैं हम। सो दिस सॉल्यूशंस वंस written down, things will be clear to all of you. So one of the solution is 1 2 3 3 2 1 1 3 2 and 3 1 2 2 3 1 2 1 3. Then the solution is 0 2 4 0 4 2 and 2 0 4 2 4 0 4 2 0 4 2 4 0 2. Then the solution is 2 2 2, right? And solution is 0 1 5 0 5 1 1 5 0 5 1 0 and 1 0 5 and 5 0 1. No? And solution is 1 1 4 1 4 1 4 1 1. ठीक है, solution is 0 0 6 0 6 0 6 0 0. Any other combination which is left? So this is 18 18 and 6 24 25 and one more is there, that is 330 033 and 303. ठीक है, these are the 28 solutions are there. Agreed? ध्यान से सुनना भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 28 सॉल्यूशन क्लियर है आपको? यस सर। अब इन 28 सॉल्यूशंस में ये तो थे क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशंस।
क्वेश्चन नंबर 2 में कितने आंसर्स जो है हमारे इंक्लूड होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा जो आंसर होगा दैट इज 7। ये अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज आस्क मी। क्लियर। हाँ जी, क्लियर क्लियर। यस। ठीक है, अब ये जो 7 है ये फाइंड करने के लिए व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं कह रहा हूं ये जो 28 सॉल्यूशंस थे, ठीक है, इन 28 को अगर मैं मानूं कि सारे के सारे 6 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, सो आई एम डिवाइडिंग बाय 3 फैक्टोरियल, बट देन इन द एंड ऑल ऑफ देम आर नॉट गेटिंग रिपीटेड 6 टाइम्स। तो यहां पर कितने मिसिंग है? 5 नंबर्स 5। मिसिंग है, जो अगर होते तो हमारी बात बन जाती। और यहां पर 3 3 एंड 3 नंबर्स आर मिसिंग, सो प्लस 3 into 3 एंड दिस आंसर इज माय 7। ओके सर। मैंने डिवाइड बाय 6 तो कर दिया, बट सारे सेट्स जो है वो 6 टाइम्स रिपीट नहीं हो रहे थे। कौन से सेट 6 टाइम्स रिपीट नहीं हो रहे थे? जहां पर सारी डिजिट्स इक्वल है वो तो सिर्फ 1 टाइम ही काउंट हुआ, बट मैंने तो डिवाइड बाय 6 किया, तो उसके लिए मैंने 5 ऐड किया है। देन जहां पर 2 डिजिट सेम है तो वहां पर भी मैंने ये गड़बड़ की, वो काउंट तो 3 बार हुए हैं और मैंने डिवाइड बाय 6 किया है, तो इनके लिए मैंने 3 3 3 दैट इज 3 टाइम्स 3 और ऐड किया है। ठीक है, to get my answer is 7. Same thing I have done here also. ठीक है, तो यहां पर जो है मेरे पास टोटल केसेस थे 55। 5 मैंने किसके लिए ऐड किए हैं? जहां पर 7 रेज टू पावर 3 into 7 रेज टू पावर 3 into 7 रेज टू पावर 3, ये तो एक ही बार काउंट हुआ था जबकि मैंने डिवाइड बाय 6 किया है। एंड देन कम्स 3 into 5 दैट इज फॉर वेयर 2 डिजिट्स आर सेम। सर वो तो सिर्फ 4 है। 4 कहाँ पे मतलब? हाँ जी हाँ जी बोलो। सर वो 3 into 5 क्यों है सर? वो 3 into 3 नहीं होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, 1 2 3 into 3 होना चाहिए बिल्कुल। वेरी गुड। ठीक है, सर बट ये इट्स स्टिल नॉट डिविजिबल बाय 6। नहीं हो रहा है तो चेक कर लेते हैं हमने कहाँ मिस्टेक की है। सो दिस इज 11 सी 9 55 है ना, 55 7 रेज टू पावर 3 का 5 7 0 1 2। ओके, यहाँ पर हमने केस मिस कर दिया बेटा, 7 रेज टू पावर 4 7 रेज टू पावर 4 एंड 7 रेज टू पावर 1 है ना, दिस वन केस वी हैव मिस्ड, सो दिस विल बी into 4। यस सर। हाँ जी, चलो ये थोड़ा सा हेवी डोज है ना, आई एक्सेप्ट दिस। लेट्स मूव ahead and do something more easier. Okay, how many 5-digit numbers are there with all digits in descending order? सारी digits descending order में होनी चाहिए। ठीक है, so हमारा जो valid number है that valid number is 5 5 4 1 1. This is a valid number, all the 5 digits are in descending order. Agreed agreed। हाँ जी बेटा जी। ठीक है, इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। सॉल्यूशन इजी है बट पहला ट्रिक जो है दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, लेट्स से आपने कोई नंबर बनाया है ना, आई एम मोर इंटरेस्टेड कि उसमें कितने 9s हैं, कितने 8 हैं, कितने 7 है
6 5 4 3 2 1 एंड 0। ठीक है, सो आपने मुझे बताया कि सर मैंने जो है यहाँ पर a टाइम्स 9 लिए हैं, b जो है वो डिजिट 8 लिए हैं, c टाइम्स डिजिट 7 लिए हैं, d e f g h i j। ठीक है, तो इनका सम कितना होगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे। इनका सम कितना होगा बेटा? मेरा जो नंबर है 5 डिजिट का जो नंबर है उसमें मैंने आपसे पूछा कितने नाइन्स हैं, तो आपने कहा सर ए नाइन्स हैं। कितने एट्स हैं? बी एट्स हैं। 6 सी 7 कितने हैं? सी टाइम्स हैं। 6 कितने हैं? डी टाइम्स हैं। तो इनका सम कितना होगा? हेलो हेलो, लेट्स से दैट नंबर इज 3 4 3 3 2। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, तो 4 3 3 2। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, बताओ? 1 1 कैसे हो गई? कितने नाइन्स आ रहे हैं? 0 0 बी की वैल्यू 0 0 0 0। ठीक है, एंड ई 0, एफ इज हाउ मच? 1 1, जी इज हाउ मच? 3 3, एच इज 1 1 0 0। तो सम ऑफ दिस विल बी हाउ मच? 5। सर ये 131 क्यों आया? कितनी बार 4 आया बेटा? हमने लिया था f टाइम्स 4, तो कितनी बार 4 है? 1 टाइम। 3 कितनी बार आ रहे हैं? Three g times. टाइम, तो g की वैल्यू 3 हो गई। 2 कितनी बार आए हैं? h टाइम्स हमने लिया था 2, दैट इज 1। 1 time. ठीक है, ये Yes. मैं क्या कर रहा हूँ? ये तो मैं 10 में से 5 डिजिट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, बस दैट्स इट। 10 में से मैंने 5 डिजिट सिलेक्ट करनी है। ठीक है, yes तो Yes. दिस इज लाइक अ बैग ना। बैग में बहुत सारे 9s रखे हैं, बहुत सारे 8 हैं, बहुत सारे 7 हैं, बहुत सारे 6 हैं। मैंने आपको बोला 5 डिजिट सिलेक्ट कर लो, तो आपने हाथ डाल के 5 डिजिट सिलेक्ट कर लिए, है ना? कितने वे में वो 5 डिजिट सिलेक्ट कर सकते हैं? सर इतने सारे वे में हम कर सकते हैं। तो ये कितने वेज हो गए? दीज आर 5 ones and 9 plus sign, तो 14 factorial by 9 factorial and 5 factorial। अब वो डिजिट जो आपने सिलेक्ट किए हैं उनको कितने वे में आप अरेंज कर सकते हो? आपने लिया 5 5 9 8 1, इनको कितने वे में आप अरेंज कर सकते हो? जो वैलिड वेज हैं, दे हैव टू बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं, ये नंबर्स आपने सिलेक्ट किए, इनको परम्यूट तो सिर्फ एक ही वे में कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर। देयर इज नो अदर वे। ठीक है, तो कितने वेज में आप डिजिट सिलेक्ट कर रहे हैं? दिस मेनी वेज, एंड टोटल नंबर्स विल बी दीज ओनली। ठीक है, दिस इज योर आंसर। हाँ जी, अंडरस्टूड? यू आर फॉलोइंग दिस? तो बेटा ये हमारे पास एक बैग है जिसमें बहुत सारे डिजिट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ इनमें से कोई भी 5 डिजिट्स निकालो। तो ये 5 डिजिट्स कितने वेज में आ रहे हैं? दीज मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट दोज 5 डिजिट, है ना? जो हमने ऊपर पेन वाला क्वेश्चन किया था, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट डिफरेंट कलर पेन और डिफरेंट डिजिट्स। जब आपने इन डिजिट्स को निकाल लिया है, ठीक है, तो उनसे आप नंबर भी बनाएंगे। तो कोई भी एक सेट जो आपने निकाला उससे कितने नंबर वैलिड नंबर बन रहे हैं? ओनली 1 वैलिड नंबर। सो जितने भी में आप डिजिट निकालेंगे उतने ही हमारे नंबर्स होंगे। दैट इज माय आंसर। सर ये हम असेंडिंग ऑर्डर के लिए भी यूज कर सकते हैं ना? असेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ एक चेंज हो जाएगा, 0 फर्स्ट में नहीं होगा कोई। 0 हो ही नहीं सकता, है ना?
तो 0 हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर j नहीं आएगा। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर में 10 डिजिट्स की जगह 9 डिजिट से हम वर्क करेंगे। ठीक है, सो ये आंसर हो जाएगा हमारा। राइट राइट। ओके, हाँ जी बेटा, जब आप इसको ओपन कर रहे हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को, है ना, सो यू आर गेटिंग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सेम वे में अगर आप पावर 20 को ओपन करेंगे तो हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर? लाइक टर्म्स को तो ऑफकोर्स हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर में कितनी टर्म्स आ रही थी? 6 टर्म्स आ रही थी, और पावर 20 कर देंगे तो कितनी टर्म्स होंगी? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी टिल a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से एक वेरिएबल 2 3 4 टिल यू विल गेट 20 वेरिएबल्स आर देयर, है ना। सो जब आप ओपन कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स किसी भी टर्म में कितने वेरिएबल्स होंगे? हाँ जी, किसी भी टर्म में कितने वेरिएबल्स होंगे? 3। हेलो हेलो, किसी भी टर्म में मीन्स किसी भी टर्म की कितनी पावर होगी बेसिकली, है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पावर 2 थी, तो यहाँ पर हर टर्म की जो पावर है, डिग्री है, वो 2 है। ठीक है, तो जब यहाँ पर आप ओपन करेंगे तो यहाँ से कम आपको यहाँ पे जो ओपन करेंगे तो आपके पास आंसर ना कुछ ऐसे आएगा, a रेज टू पावर x, b रेज टू पावर y, c रेज टू पावर z, ऐसे करके कुछ आंसर आएगा। और जो a b c की कंबाइंड पावर है वो मैक्सिमम कितनी होगी? 20। 20। और मिनिमम कितनी होगी? 0। 0 कैसे आएगी पावर, बता दो मुझे। जब आप ओपन करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से a 3। b या c कुछ तो लेना पड़ेगा, फिर वापस यहाँ पर a b या c कुछ लेना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई करने के लिए। 1। 1 कैसे हो जाएगी? 20 हो गए। 20 होगी बेटा, हाँ जी। जैसे यहाँ पर हर टर्म की पावर 2 है, हर टर्म की पावर 2 है। आप समझ रहे हैं, जब आप इसको ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो बेसिकली हर सेट से आप एक वेरिएबल तो लेंगे ही ना, और वो एक एक वेरिएबल कितनी बार आपको लेने हैं? 20 सेट्स हैं, 20 टाइम्स लेंगे। यस सर। ठीक है, तो व्हाट कैन यू से, यहाँ पर आपके पास जो डिफरेंट टर्म्स आएंगी वो डिफरेंट टर्म्स जो है that will be in form of a raised to power x, b raised to power y, c raised to power z। अगर आपने एक टर्म बनाई a raised to power 0, b raised to power 2, c raised to power 18, that means आपने स्टार्टिंग में b को लिया, है ना, you took b, then you took b, and after that you just took cc, आपने फिर cc को मल्टीप्लाई किया बस। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। So total solution, total number of terms, total number of terms will be in how many ways you can distribute total power of 20 among ABC? So answer is 22 factorial by 20 factorial 2 factorial। टोटल पावर 20 होनी चाहिए, हर टर्म की पावर 20 होगी, तो ए बी सी में आप वो 20 की पावर कितनी वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अगर कोई टर्म्स लाइक टर्म्स होंगी तो वो एड अप हो जाएंगी, तो सिंप्लीफाइड वर्जन में हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर? दीज मेनी टर्म्स विल बी देयर। सर ये वाला समझ नहीं आया। Okay, so if I am saying a plus b whole cube, ठीक है ना, so this is a plus b into a plus b
इंटू ए प्लस बी। जब आप ओपन कर रहे हैं तो आप कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? आप सेट्स बनाएंगे ना, a इंटू बी इंटू ए, सो दैट विल बी a square b, है ना? Then you are taking a into a, that is a cube. Then you are taking a into b, that is a square b. ऐसे करके ओपन करेंगे आप, यस सर। ठीक है? इस ओपनिंग में अगर आप देखेंगे तो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? टोटल 3 टाइम्स यू आर मल्टीप्लाइंग। पहली आप टर्म यहां से ले रहे हैं, दूसरी टर्म यहां से ले रहे हैं, थर्ड टर्म यहां से ले रहे हैं आप, यस सर। है ना? सो एवरी टाइम यू आर टेकिंग सर्टेन नंबर ऑफ एज, आप कुछ एज ले रहे हैं और कुछ बीज ले रहे हैं टू मल्टीप्लाई, यस सर। है ना? सो इन हाउ मेनी वेज यू कैन मेक इट? या तो आप जीरो कोई भी ए ना लें और 3 बीज ले लें, या फिर एक ए और 2 बीज, या फिर 2 एज और 1 बी, या फिर 3 एज एंड नो बीज। बस यही तो पॉसिबिलिटी है। यस सर। तो इसमें कितनी टर्म्स होंगी इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो? हाँ जी, 4 4 टर्म्स, है ना? तो सेम वे में बेटा, अगर a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब है, ठीक है, तो आप क्या, आपको 3 टर्म ही तो लेनी है। आप वो 3 टर्म कैसे ले सकते हैं? आपने जो है एक ए ले लिया और 2 बीज ले लिए, या फिर एक ए एक बी और एक सी ले लिया, या फिर एक ए और 2 सीज ले लिए, या फिर 2 एज और एक सी ले लिया, है ना? 2 एज एंड 1 सी, दिस इज व्हाट यू आर मल्टीप्लाइंग। तो जो हर टर्म है उस टर्म की डिग्री जो है वो 3 होगी, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती ना। अगर आप ये वाला केस देखेंगे तो आपने ए लिया, फिर सी लिया, फिर सी लिया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए सी स्क्वायर बन रहा है, ठीक है? सो यू हैव टेकन एक्स नंबर ऑफ एज, वाई नंबर ऑफ बीज एंड जेड नंबर ऑफ सीज। हर टर्म जो है वो इस फॉर्मेट में होगी, वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 3 होगा हमारा, ठीक है? यस सर। तो आप जब एक्सपेंड करते हैं, अगर मैंने a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को एक्सपेंड किया है पावर 100, इसको एक्सपेंड करने पर जो टर्म्स आएंगी हर टर्म की पावर 100 होगी। दिस विल बी a रेज टू पावर 70, b रेज टू पावर 20, c रेज टू पावर 5, तो d की पावर जो है वो 500% होगी, है ना? सो दैट द कंबाइंड पावर ऑफ द टर्म इज 100, ठीक है? सेम थिंग आई एम यूजिंग हियर। Combined power of each term is 20, so how many terms can be possible? That is my answer. ओके। ठीक है? सो इसमें अगर आप यहाँ पर बेटा एक आपने ऑप्शन लिया, दिस इज 0, दिस इज 19, दिस इज 1, ठीक है? सो दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट अ टर्म जहां पर a 0 होगा, b 19 होगा और z होगा, ठीक है? कोफिशिएंट कुछ भी होने दो। इज दिस पॉसिबल? यस, दिस इज पॉसिबल। मैं ए को सिलेक्ट ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बी को सिलेक्ट कर रहा हूं और लास्ट में जाकर मैंने सी को सिलेक्ट किया है, so that is one of the term which will be there. Right, everyone? Yes, sir. Okay, so this question I'll take later on. How many different outcomes are there when we throw 4 dice together? उससे पहले ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। 4 dice are thrown together, find the probability that sum is 8, ठीक है? Probability is favorable outcome upon total outcome. चलो फटाफट बता दो टोटल आउटकम क्या होंगे? सर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज 4। ना 2 डाइस फेंकते हैं तो आउटकम कितने होते हैं बेटा?
टोटल आउटकम सर 6 raised to power 4. 6 raised to power 4 है ना. These are total outcome. Now I am asking when the sum is 8. तो फर्स्ट डाइस पर हमारे पास A आया है, सेकंड डाइस पर B आया, थर्ड डाइस पर C आया, फोर्थ डाइस पर D आया, एंड इनका सम कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए. तो फटाफट बताओ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? हाँ जी, फेवरेबल आउटकम्स. चलो, अगर मैंने फेवरेबल आउटकम्स लिखा 11 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो कहां पर मिस्टेक कर दी? 0 नहीं होएगा. हाँ, डाइस पर 0 तो आ ही नहीं सकता ना. अगर डाइस पर 0 नहीं आ सकता तो दैट मीन्स यहाँ पर ABCD क्या है हमारे? दे आर नेचुरल नंबर. ठीक है, तो नेचुरल नंबर है तो स्टार्ट कैसे करेंगे? पहले इनको 1 1 दे देंगे. दिस इज A डैश प्लस B डैश प्लस C डैश प्लस D डैश इज 4 एंड फेवरेबल आउटकम्स आर 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. ठीक है, these are favorable outcomes. So that is 4 3 2 6 35. ठीक है, आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस थे कि इक्वेशंस को कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज करना है ना. इक्वेशन के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट वर्ड क्वेश्चन जहां पर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होगा. ओके, हाँ जी, एग्री टिल हियर? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now I have got A, B, C, D, E are there. इनको मुझे बेटा 3 seats पर I have to make them sit. In how many ways I can make them sit? 5 into 4 into 5 4 3. 5 into 4 into 3 है ना. ये 3 वे, ये इतने वेज में हम we can make them sit on these seats. अगर मैं एक काम और करूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं कि बिठाने से पहले मैं यहां पर जो है आई एम सिलेक्टिंग दो 3 लकी स्टूडेंट्स. सिलेक्ट 3 स्टूडेंट्स. मैं उन 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रहा हूं पहले. ठीक है, एंड देन आई एम मेकिंग देम सिट ऑन दिस सीट्स. अगर मैंने उन 3 स्टूडेंट्स को बेटा, उन 3 स्टूडेंट्स को मैंने क्वेश्चन मार्क और x नंबर ऑफ वेज से सिलेक्ट किया है. ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा? पहले मैंने 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, फिर मैंने उनको 3 फैक्टोरियल वेज में सीट्स पर बिठा दिया. Yes, sir. एंड दिस आंसर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 5 into 4 into 3, क्योंकि परम्यूटेशन में हमने यही सीखा है. ठीक है, सो ये x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग सिलेक्शन ऑफ 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम और आउट ऑफ 5. randomly. रैंडमली 3 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं मुझे 5 में से. ठीक है, उनको मैंने 3 फैक्टोरियल वे में मैं उनको सीट्स पर बिठा सकता हूं. दिस इज इक्वल टू 5 into 4 into 3. ठीक है, दिस सिलेक्शन इज दस इक्वल टू 5 into 4 into 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल. अगर मैं ऊपर और नीचे 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं, सो दिस इज 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन हो रहा है. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है सिलेक्शन ऑफ आर स्टूडेंट्स आउट ऑफ n इज इक्वल्स टू. ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे तो मैंने 3 सिलेक्ट किए थे बेटा 5 में से, तो मेरे पास
यहाँ पर 5 की जगह क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 3 की जगह क्या आ जाएगा, r फैक्टोरियल, और 2 की जगह 2 कहां से आ रहा है, 5 माइनस 3 है ना, so that is n minus r factorial, and this is what we give as NCR. NCR is selection. There is no permutation, just selection. मुझे सिलेक्ट करने हैं, बिठाना बिठाना कुछ नहीं है, अरेंजमेंट से मुझे मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट करने हैं. सर व्हाट इज सी? सी इज कॉम्बिनेशन के लिए सी यूज कर रहे हैं, परम्यूटेशन के लिए हम पी यूज करते हैं. आई विल टेल यू व्हाट पी आल्सो मींस. ठीक है, सो अगेन इफ सिलेक्शन 5 में से हमने 3 को सिलेक्ट करना था बेटा, ए बी सी डी ई, इन हाउ मेनी वेज आई कैन सिलेक्ट, लाइक से ए तो सिलेक्ट हुआ ही है, बी और सी, ए बी डी, ए बी ई, ठीक है, ए सी डी, ए डी ई, बी सी डी, बी सी ई, बी डी ई, and then you have got C D E. कुछ मिस हो गया हमारा, B C B C A C A C E is missed. So we have got A C E. कितने वेज में मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूं, आई एम एबल टू सिलेक्ट इन 10 ways. ठीक है, 5 में से if I have to select 3 students, let's say I have to take 3 students for picnic out of 5, in how many ways I can select those. अब ये मैटर ही नहीं करता ना, राम श्याम घनश्याम या घनश्याम राम श्याम. ठीक है, 3 स्टूडेंट तो 3 है, पहले आगे पीछे लिस्ट में नाम लिखा है, उससे इट डजंट मैटर एट ऑल. ठीक है, दैट इज व्हाट इज सिलेक्शन इज. ठीक है, सो सिलेक्शन ऑफ 3 out of 5 is what we give 5C3, and this is equals to 5 factorial by 3 factorial and 2 factorial. ठीक है, फटाफट बताओ, सिलेक्शन ऑफ 10 out of 13, आंसर क्या होगा, 13C10. 13C10, which is 13 factorial upon 10 10 factorial. factorial into 3 factorial. Agreed. ठीक है, this is what is combination is. Combination is about selection. ठीक है, permutation is about arrangement. ठीक है, आपको उनको अरेंज करना है, while combination is about selection. सर आप सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हैं, हाँ जी, ऑर्डर डज नॉट मैटर. हाँ जी सर बोलो. तो जैसे अभी हम ऊपर जो क्वेश्चंस कर रहे थे सर, वो तो एक तरह से कॉम्बिनेशन के ही हो गए कौन से क्वेश्चन, सर, जिसमें जैसे हमें 3 नंबर्स लेने थे, जैसे जो ABC वाला था, ABC इज इक्वल टू 7 to the power 9. हाँ जी, तो उसमें सर तो वो एक तरह से कॉम्बिनेशन का ही तो हो गया कैसे, सर, क्योंकि उसमें भी तो हम सिलेक्ट नहीं सर, मतलब वो जो नंबर्स वाला था जिसमें बहुत सारे नंबर्स थे और हमें 3 सिलेक्ट करने थे, तो उसमें तो हमें कोई अरेंजमेंट करनी नहीं थी, कोई भी 3 लेने थे. हाँ बिल्कुल, कुछ क्वेश्चन जो ऊपर परम्यूटेशन से हमने सॉल्व किए हैं, सो वो कॉम्बिनेशन से जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे. सो आई टोल्ड यू दैट टाइम आल्सो, है ना, विल सी दो सॉल्यूशंस अगेन विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन, बट परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट भी जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. यस. ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन अभी जो हम बात कर रहे थे, तो आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स में से मुझे बेटा 3 स्टूडेंट्स को यहाँ पर, 7 स्टूडेंट्स को मुझे यहाँ पर बिठाना है. ठीक है, इन हाउ मेनी वेज आई कैन मेक देम सिट. परम्यूटेशन में देखेंगे तो 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4, और कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो आप कहेंगे 10 में से 7 को आपको बिठाना है, तो पहले 7 सिलेक्ट कर लो. ठीक है, आपने 7 सिलेक्ट कर लिए, अब उन 7 को आप परम्यूट कर दें. ठीक है, सो दिस आंसर इज 10 factorial 7 factorial 3 factorial into 7 factorial. 7 factorial get cancelled, so this is 10 into 9 into 8 into 7, 6 5 4 3 factorial by 3 factorial, and this gets cancelled.
ठीक है, आज की क्लास जो है वो मोस्टली, ठीक है, आईआईटी क्वेश्चंस पर थी, और वी हैव टेकन मेन के मेनली, कुछ क्वेश्चन एडवांस लेवल के भी थे, ठीक है. आई विल पोस्ट द वीडियो आल्सो लेटर ऑन, एंड लेट्स एंड द सेशन हियर. नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे. थैंक यू सर. थैंक यू सर. Any doubt you can post on WhatsApp. We'll discuss it out. Socrative है ना? Please complete the Socrative. Thank you, sir. Okay, welcome. Bye, sir. Bye bye.